So hey guys, and welcome to the channel again. And in the last part of the video we have covered how we can create the modeling structure, or you can say modeling part. And in this part of the video we will create the API. Okay, and this will be a basic API. First of all, we will cover all the basics of the API. Then what we will do is we will convert those API into the authenticated API. Okay, and initially we are not going to use any kind of authentication. Anyone can create the question, anyone can create the form, anyone can create the choices, and anyone can answer it. And in the next part of the video we will cover some sort of authentication, so that will allow only authenticated user to create questions, create form, create choices. And once the question, or you can say quiz, is created, then any user can do, or you can say any of the user can answer these questions. Okay, so now let's start with a very basic API. and अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, so I will recommend कि आप पहले वाले वीडियोस को देख सकते हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको चैनल पे कई ज़्यादा अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे, दैट यू कैन चेक इट आउट एंड लिटरली यू विल बी अमेज्ड. ओके, दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स अभिजीत गुप्ता ने बना करके रखे हैं. एंड आई विल रिक्वेस्ट, अगर आप किसी तरीके से इस चैनल को प्रमोट कर सकते हो, सो आई विल लव टू. आप लिंक्डइन पे जाकर के पोस्ट कर सकते हो. एंड इससे आपको भी फ़ायदा होता है. क्या होता है कि जब मैंने फर्स्ट जॉब अपनी ऐसी ली थी, लाइक आई डिड सम सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड मैंने लिंक्डइन पे उसको वीडियो बनाया, टैग किया लोगों को. सो व्हाट सॉर्ट ऑफ नेटवर्क एक बिल्ड होता है. ओके, एंड लिंक्डइन इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग. जितनी ज़्यादा आपकी नेटवर्किंग होगी, इट्स more easier to get a great job. Okay, so now let's go into the settings part. I hope I already told you like how you can include like this REST framework. If you haven't included this REST framework, definitely you can include it, and which is covered in the last part of the video. Okay, so now let's go in the views, and for this we are going to use a normal API view ताकि हम लोग API वगैरह कर पाएँ, and normal a serializer create करने वाले हैं. Okay, so now let's go into the Django REST framework documentation, because I want like सब आपको सही like कैसे भी जो भी रियल वर्ल्ड में काम होता है उस तरीके से काम हो. ओके, सो वो चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ. फॉर दैट रीज़न फर्स्ट वी हैव टू गो इनटू द व्यूज़ पार्ट. देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंपोर्ट सम सॉर्ट ऑफ व्यूज़. दीज आर टू थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू इंपोर्ट. ओके, सो ये दो चीज़ें हम लोगों ने इंपोर्ट कर ली. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़, हमें अपना सबसे पहले सीरियलाइज़र लिखना पड़ता है. सीरियलाइज़र होता क्या है, जिन भी लाइक स्टूडेंट्स को सीरियलाइज़र नहीं पता, आप जाकर के दोबारा समझा देता हूँ क्या होता है. आप जाकर के कहीं और मत देखो, सही इसी में समझाते हैं. तो क्या होता है, देखो, एक सीरियलाइज़र इज़ अ क्लास होती है जिसमें आप किसी भी क्वेरी सेट को जेसन में कन्वर्ट करते हो. बिकॉज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक क्वेश्चंस डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, तो ये मुझको क्या रिटर्न करेगा, एक पाइथन का ORM एग्जीक्यूट होगा एंड हमें एक क्वेरी सेट रिटर्न करके देगा. दैट विल बी क्वेश्चंस के जिसके अंदर ऑब्जेक्ट पड़े होंगे. नाउ व्हाट विल हैपन इज, लेट्स से हमें इस वाले को जेसन में कन्वर्ट करना है, बिकॉज हम क्वेरी सेट को बैक फ्रंट एंड में नहीं भेज सकते. व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें इसको जेसन में डेटा को भेजना पड़ेगा. फॉर दैट रीजन वी यूज serializer, that is like kind of a vice versa. You can convert query set into your JSON response, and from JSON response you can convert into query set, which you can save into your database. Okay, so this is a very simple example. Serializer means a thing, or you can say a class that helps you to serialize the data. And serialize in means like you can say कि कोई भी query set है आपके पास में, you can convert that specific query set to a JSON response, and same vice versa you can convert that JSON response to a query set, or you can say object, which a database can understand. Okay, so now let's go and let's write our first API that will be called as question API. So question API, and in this we are going to pass API view. and हर एक क्वेश्चन के अंदर, हर एक API व्यू के अंदर आपके पास में 4 या 5 मेथड मिलते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट करके. ठीक है, तो हमें यहाँ पे गेट का मेथड लिखना पड़ेगा बिकॉज हमें गेट वाले को चाहिए होगा. सो नाउ लेट्स गो एंड लेट्स राइट सेल्फ, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं रेस्पॉन्स. ओके, एंड रेस्पॉन्स में हम इस तरीके से स्टेटस रिटर्न कर सकते हैं, दैट विल बी ऑफ ट्रू. एंड आफ्टर दैट व्हाट वी कैन डू इज मैसेज में हम टाइप कर सकते हैं कि क्वेश्चंस फेच्ड सक्सेसफुली करके. एंड यहाँ पे हम लोग अपना डेटा भेजने वाले हैं जो कि इस तरीके का होने वाला है. ओके, सो नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक सीरियलाइजर लिखना पड़ेगा जिसके अंदर हम लोग ये क्वेश्चन को भेजने वाले हैं. सो फ्रॉम डॉट मॉडल्स लेट्स इंपोर्ट क्वेश्चन. ठीक है, सो क्वेश्चन के लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं व्हाट, क्वेरी सेट क्वेरी सेट इज इक्वल टू क्वेश्चन डॉट
ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, एंड इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा एक सीरियलाइज़र. सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीरियलाइज़र लिख लेते हैं, सीरियलाइजर्स डॉट पी वाई करके, एंड यहाँ पे रेस्ट फ्रेमवर्क से सीरियलाइज़र को इंपोर्ट कर लेते हैं. सो फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क्स लेट्स इंपोर्ट सीरियलाइज़र, एंड हमारे पास में मल्टीपल सीरियलाइजर्स के ऑप्शन पड़े होते हैं, जस्ट लाइक वी हैव नॉर्मल सीरियलाइज़र, मॉडल व्यू से मॉडल सीरियलाइज़र, देन वी हैव लिस्ट सीरियलाइज़र, अलग अलग तरीके के सीरियलाइज़र होते हैं. तो ये सारी चीज़ों को अगर आपको देखना है एंड मॉडलिंग चीज़ों को देखना है तो यू कैन चेक आउट माई कोर्स, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारी एडवांस ऑफ पाइथन, एडवांस ऑफ जांगो, हर चीज़ सिखा रहे हैं. दीज आर द 3 कोर्सेज दैट यू शुड चेक आउट डेफिनेटली. फर्स्ट वन इज़ रियल टाइम डिलीवरी बॉय काफका, जिसमें हम लोग आपको काफका ज़ूकीपर सिखा रहे हैं. यू हैव मस्ट हैव हर्ड अबाउट लाइक स्विगी एंड जोमेटो, जिसमें वो दिखाते हैं कि रियल टाइम में आपका डिलीवरी बॉय किस लोकेशन पर पहुंचा, ड्राइवर ओला ऊबर यूज़ करते हैं कि काफका को, एंड सेम सॉर्ट ऑफ थिंग दैट इज this is a flagship course that you can check it out. This course is literally amazing. No price is also very less, and इस कोर्स में हम आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं. वी आर टीचिंग यू लाइक एडवांस ऑफ पाइथन, एडवांस ऑफ जांगो. आफ्टर दैट हम आपको यहाँ पे जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क भी सिखा रहे हैं. उसके साथ साथ में आपको काफका, रेडिस, रैबिट एमक्यू, वेब स्क्रैपर का प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं. इलास्टिक सर्च हो गया, सेलेरी हो गया, और उसके बाद में डॉकराइज कैसे करते हैं, इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन आपकी करवा दे रहे हैं. एंड ये जो कोर्स है इसमें आपको बहुत ही एडवांस चीज़ें मिलने वाली हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो कोर्स है ये आपको लाइव डाउट सॉल्विंग सपोर्ट के साथ में आता है. मतलब अगर आपका कोई भी डाउट आता है एंटायर द कोर्स तो आप मेरे से पूछ सकते हो. हर हफ्ते हमारी वीकली डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं जिसमें आप मुझसे 1-to-1 इंटरैक्ट कर सकते हो. आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो वो भी आप मेरे से सॉर्ट आउट कर सकते हो. एंड दिस इज एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन जस्ट 2100 रुपीज़, जो कि आप कूपन कोड यूज़ करने वाले हो उसमें आपको मिल जाएगा. एंड ये कोर्स जो है वो लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ में आता है. मतलब आपने एक बार परचेज कर लिया, इसमें जो भी अपडेट होने वाले हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हो. जो डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट. कोर्स लिटरली बहुत अमेजिंग है एंड बहुत सारे लोगों की अच्छी लेवल की जॉब लग चुकी है. नाउ लेट्स गो बैक. सो हमें क्या करना पड़ेगा, सीरियलाइजर लिखना पड़ेगा. तो हम सबसे पहले लिखते हैं क्या, क्वेश्चन सीरियलाइजर. सो क्वेश्चन सीरियलाइजर. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज सीरियलाइजर डॉट मॉडल सीरियलाइजर, एंड यहाँ पे हमें क्लास लिखना पड़ेगा मेटा, दैट विल बी एज मॉडल इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे मॉडल सेट करना पड़ेगा. फ्रॉम डॉट मॉडल्स लेट्स इम्पोर्ट यू कैन से क्वेश्चन. ठीक है, अगर आपको ये सारी चीज़ें टफ लग रही हैं तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द कोर्स, उसमें हर चीज़ आपको ईजिली मिल जाएंगी. फील्ड्स, एंड नाउ व्हाट फील्ड्स वी हैव टू सीरियलाइज. हमें यहाँ पे सारी फील्ड्स को सीरियलाइज करना है एक्सक्लूडिंग दिस क्रिएटेड एट अपडेटेड एड, क्योंकि ये एडमिन की फील्ड है तो इन चीज़ों को हमें यहाँ पे हटा देना है. सो लेट्स गो एंड लेट्स टाइप एक्सक्लूड इज इक्वल टू दिस विच इज़ लाइक क्रिएटेड एट एंड विच इज़ एट अपडेटेड एट. ओके, नाउ क्या करते हैं, क्वेश्चन सीरियलाइजर में इसको पास कर देते हैं जस्ट लाइक दिस. सीरियलाइजर इज इक्वल टू क्वेश्चन सीरियलाइजर, एंड लेट्स इंपोर्ट दिस क्वेश्चन सीरियलाइजर ऑल्सो. फ्रॉम डॉट सीरियलाइजर लेट्स इंपोर्ट क्वेश्चन सीरियलाइजर. अभी तक बहुत सिंपल सा है, हमने सीरियलाइजर एक बनाया हुआ है एंड इसके अंदर क्वेरी सेट को हम पास कर देंगे. बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा हमारे पास में डेटा आएगा तो हमें यहाँ पे मैनी इक्वल टू ट्रू लिखना पड़ेगा. जैसे ही हमारे पास में आ जाएगा तो व्हाट वी हैव टू डू इज सीरियलाइजर डॉट डेटा कर दिया हमने. नाउ हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेरी सेट को, इस राउट को हमें रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपने यूआरएल्स में. सो यहाँ पे पाथ लिख लेते हैं, पाथ एपीआई क्वेश्चंस फ्रॉम quiz dot views let's import question API dot as view. ठीक है, तो अब हम ट्राई करते हैं API को टेस्ट करने का. सो सर्वर हम बूटअप कर लेते हैं, माइग्रेशंस पहले अप्लाई कर लेते हैं. सो python manage.py. अभी हम SQLite यूज़ कर रहे हैं, अभी फ्यूचर में हम लोग इसको चेंज कर लेंगे ना. ये भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक डेटाबेस को दूसरे डेटाबेस में माइग्रेट भी कर सकते हो. मतलब हमारा जो भी डेटा है वो सारा इसमें है ना. सो python manage.py. एक सुपर यूज़र भी क्रिएट कर लेते हैं, सुपर यूज़र. Now let's run our server. ओके, तो हमारा सर्वर जो है वो बूटअप हो चुका है. नाउ इफ वी गो हेयर API/question, दो बार API हो गया है. ओके,
क्वेश्चन API टेक 1 पैरामीटर. ओके, नाउ लेट्स रीलोड. तो जैसे मैं रीलोड करूँगा तो क्वेश्चन फेच सक्सेसफुली बताएगा, बिकॉज हमने कोई भी क्वेश्चन अभी स्टोर नहीं किया है. तो नाउ अब हम चलते हैं इन सारी चीज़ों को ऐड करते हैं. एंड हर एक में डंडर str मेथड लिख लेते हैं ताकि जो भी था वो सही से ही हमें यहाँ पे विजिबल भी हो जाए. चॉइसेस हो गया एंड डेफ str सेल्फ डॉट क्वेश्चन. एंड यहाँ पे फॉर्म कोड भी जनरेट करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ओवरराइड कर सकते हैं सेव मेथड को. ठीक है, तो अभी इसको भी हम लोग सेटअप करते हैं. सो नाउ लेट्स गो इन द एडमिन पार्ट. ठीक है, एडमिन में हम लोग लॉगिन करते हैं एंड एडमिन में हम लोग को इनको रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा. सो चॉइसेस, क्वेश्चंस एंड फॉर्म. सो नाउ let's go let from dot models let's import this. Okay, now let's register admin dot site dot register choices, question, form. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन आ गया. तो मान लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा है, जो क्वेश्चन है जस्ट लाइक व्हाट इज पाइथन. ठीक है, क्वेश्चन टाइप हो गया हमारा, यू कैन से मल्टीपल चॉइसेस में होगा. तो चॉइसेस वी हैव टू क्रिएट. सो चॉइसेस क्रिएट कर लेते हैं. सो पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. देन पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया. देन व्हाट हो सकता है, पाइथन इज़ अ एनिमल. पाइथन इज़ अ एनिमल हो गया. एंड व्हाट, इट्स अ स्नेक एंड इट्स अ फूड. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया पहला. अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया. सो ID व्हाट इज़ पाइथन, क्वेश्चन टाइप आ गया, मल्टीपल चॉइसेस का क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड ट्रू है. ओके, बाय डिफ़ॉल्ट रिक्वायर्ड ट्रू आएगा. चॉइसेस इसकी 1 2 3 4 आ रही, जिसको अभी हमें सही करना पड़ेगा. ठीक, देन व्हाट वी हैव टू डू इज़, ये हो गया हमारे साथ में. देन उसके बाद एक दो क्वेश्चन और ऐड कर लेते हैं. जस्ट लाइक व्हाट इज थ्रेड इन पाइथन. एंड ये जो है वो आपका लॉन्ग आंसर हो जाएगा, इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा. तो हमने इसको सेव करा लिया. तो एक बार और रीलोड करोगे तो आपके एक और क्वेश्चन आ गया. नाउ लेट्स ऐड सम सॉर्ट ऑफ अदर क्वेश्चन. JavaScript is a dynamic language. Question type will be multiple choice. Choices हमें ऐड करने पड़ेंगे. Yes, and then we can add a choice that is no. So let's save it and now let's do this. ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. बट दिस इज एग्जैक्टली नॉट अ करेक्ट वे, बिकॉज हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को डायरेक्टली यहाँ ऐसे तो भाई आप जितने क्वेश्चन क्रिएट करते चलोगे सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होते चले जाएंगे. बट व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू इज, हमें इन क्वेश्चंस का क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा. एंड इन दैट फॉर्म वी कैन ऐड मल्टीपल क्वेश्चंस, देन ओनली यूजर कैन आंसर. ठीक है, सो हमने ऐड फॉर्म किया. फॉर्म का कोड हमें जनरेट करवाना पड़ेगा. सो नाउ लेट्स गो टू द फॉर्म सेक्शन. यूनिक ट्रू कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं ब्लैंक ट्रू कर दूंगा. और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, python manage.py मेक migrations एंड python manage.py migrate. रन सर्वर करूँगा और इसको रीलोड करूँगा. तो ब्लैंक करने से क्या हुआ, यहाँ पे जो ये कोड मेरे से पूछ रहा था वो कोड अब नहीं मांगेगा. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज ओवरराइड करना पड़ेगा हमें सेव मेथड को Django के अंदर, बिकॉज उसी में हम लोग यहाँ पे कोड के लॉजिक को लिखने वाले हैं. ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज लेट्स गो हेयर एंड लेट्स टाइप डेफ सेव सेल्फ हो गया. एंड उसके बाद में आपका हो गया
आर्क्स और क्वार्क्स, ठीक है, आर्क्स एंड क्वार्क्स। देन वी हैव, उसके बाद में हमें यहाँ पे कोड को जनरेट करना है। सो सेल्फ डॉट कोड इज इक्वल टू, एंड एक चीज़ और करना, इफ सेल्फ डॉट पी के, मतलब अगर पहली बार ही हमें कोड को जनरेट करना है, हर बार कोड को जनरेट नहीं करना है। इफ नॉट सेल्फ डॉट पी के देन ओनली वी हैव टू जनरेट द कोड, अदरवाइज वी डोंट हैव टू जनरेट द कोड। ओके, सो नाउ सुपर, उसके बाद में फॉर्म कॉमा सेल्फ डॉट सेव आर्क्स एंड क्वार्क्स इसमें पास कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया। तो सेल्फ डॉट कोड में हमें एक कोड जनरेट करवाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग जनरेट रैंडम स्ट्रिंग एंड पाइथन करके सर्च कर लो, है ना, कोई भी फंक्शन मिल जाएगा, उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये एक फंक्शन है जो कि हमें रैंडम स्ट्रिंग को देने वाला है। सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज़, हम यहाँ इसको यूटिल्स में क्रिएट कर लेंगे, यूटिल्स डॉट पी वाई में। नाउ लेट्स कॉपी दिस एंड लेट्स पेस्ट दिस, ठीक है। diff generate random कोड करके, ठीक है। एंड यहाँ पे n पास कर देंगे, डिफ़ॉल्ट में होगा 7, अगर किसी को बढ़ाना होगा तो वो बढ़ा लेगा। सो यहीं से इसको रिटर्न करवा देंगे क्या, रेस, एंड यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम डॉट यूटिल्स, लेट्स इंपोर्ट दिस जनरेट रैंडम कोड, और यहाँ पे जनरेट रैंडम कोड को हम लोग पास कर देंगे एंड इसके अंदर हम लोग 9 डाल देंगे, ठीक है। तो ये सेव कर देगा। नाउ लेट्स ट्राई दिस वेदर दिस इज वर्किंग और वी हैव टू फिक्स सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ओके, सो फॉर्म का कोड हमें डालने की ज़रूरत नहीं, टाइटल पाइथन क्विज फॉर्म, क्रिएटर एडमिन हो गया, क्वेश्चन हमें तीनों इसमें डालने हैं, तो मैं सेव कर दिया। नाउ यू कैन सी ये क्रिएट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 का ही क्रिएट किया है इसने बाय डिफ़ॉल्ट, और इसको हम लोग एन तो ऑटोमेटिकली ले लिया। तो इसमें हम लोग ज़्यादा भी भेज सकते हैं, बिकॉज ज़्यादा भेजोगे तो ही ज़्यादा सही रहेगा। लेट्स से 15 और यू कैन से 20 भेज देते हैं, ठीक है। तो दोबारा ये जनरेट नहीं होने वाला है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज़, हम यहाँ पे जाएंगे, टाइटल अगेन मेंशन करते हैं पाइथन क्विज, क्रिएटर एडमिन हो गया, सारे क्वेश्चन हो गए, सेव कर दिया, तो ये हो गया। ओके, सो ये सही है, बट इसमें हमें क्या चाहिएगा, कुछ लोअर और कुछ हायर में चाहिए होगा। सो उसके लिए हम यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, लोअर में 2 लोअर कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको 2 लोअर करेंगे तो ये हमें क्या करेगा, लोअर में भेज देगा। और so here we can go models, let's do dot lower. Okay, now let's go, let's delete this. Okay, and let's do save it. तो ये आपका सही आ गया, तो ये आपका एक कोड आ गया, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़, हमें एक एपीआई लिखनी पड़ेगी जिसमें जो भी बंदा ये कोड को डालेगा उसमें हमें उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको हमें यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू इज़, लेट्स क्रिएट अ न्यू एपीआई दैट विल बी कॉल्ड एज क्लास फॉर्म एपीआई व्यू, एंड हेयर गेट, और साथ ही साथ में हमारे पास में यहाँ पे एक पीके आएगा। ओके, इन दैट पीके हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी लाइक कस्टमर जो है
एंड हेयर वी विल डू लाइक फॉर्म डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, एंड जो भी कोड इसने भेजा होगा वो भेजना पड़ेगा. सो फॉर्म हो गया. ठीक है. सो हेयर वी हैव टू डू व्हाट कोड इज इक्वल टू पीके, मतलब जो भी जिस भी बंदे ने जो भी ये कोड डाला होगा उसको हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा. And here we have to write a new serializer that will be called as class form serializer and serializer dot model serializer, and हमें सेम वही चीज़ करनी पड़ेगी, बस हमें यहाँ पे फॉर्म को लिखना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन. सो फॉर्म. ठीक है. एंड हेयर वी कैन रिमूव दिस, हेयर वी कैन मेंशन फॉर्म. ठीक है. फॉर्म serializer हो गया. एंड लेट्स गो इन व्यूज. फॉर्म serializer, फॉर्म serializer हो गया. एंड फॉर्म API हो गया. फॉर्म फेच सक्सेसफुली. ठीक है. सो हेयर व्हाट वी हैव टू डू इज फॉर्म API को चलते हैं ऐड करते हैं यहाँ पे API वाले पार्ट में, और यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म, और यहाँ पे हमें PK डालना पड़ेगा. डॉट एस. ओके. सो ये फॉर्म API हो गई. एंड लेट्स गो हेयर. तो ये हमारा पूरा पूरा आ रहा है. नाउ लेट्स टेस्ट दिस API. लेट्स गो हेयर. लेट्स डू व्हाट API स्लैश फॉर्म स्लैश, और जो भी कोड था वो कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे. लेट्स गो हेयर. फॉर्म ऑब्जेक्ट इज ओके. यहाँ पे मैनी इक्वल टू 2 नहीं जाएगा बिकॉज ये सिंगल ऑब्जेक्ट आ रहा है. नाउ लेट्स रिमूव दिस. जस्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट इज नॉट रिट्रीवेबल. ठीक है. तो ये फॉर्म का डेटा आ रहा है हमारे पास में. नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, क्या ये जो रिस्पॉन्स है इससे हम लोग UI बिल्ड कर पाएंगे? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज ये जो फॉर्म आ रहा है ये सिर्फ सिंपल सा आ रहा है कि कोड ये है, टाइटल ये है, बैकग्राउंड पे. इसमें एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं. क्वेश्चन आ रहे हैं डेफिनेटली नहीं आ रहे हैं, और इसमें हमें यहाँ पे क्रिएटर वगैरह कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं है. ओके. सो व्हाट वी हैव टू डू इज हम यहाँ पे चलते हैं फॉर्म serializer में एंड एक्सक्लूड करते हैं क्रिएटर को. क्रिएटर हमने एक्सक्लूड कर दिया. उसके बाद में आप चाहो तो ये ID भी हटा सकते हो बिकॉज कोई ज़रूरत नहीं ID की. वी कैन डायरेक्टली डील विद दिस कोड. ओके. अगर मैं कुछ चाहिए होगा. ठीक है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, देखो एक और तरीके ये हो सकते हैं कि आप जाकर के क्वेश्चन को इसके अंदर ऐड करो, फिर उसके बाद वो करो, ये करो जाकर के. उससे अच्छा मैं आपको एक कस्टम तरीका बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे इस के अंदर एक मेथड होता है दैट इज कॉल्ड एज टू रिप्रेजेंटेशन. इसको आप जाकर के मॉडिफाई कर सकते हो. यहाँ से आप जो भी चीज़ करोगे वो डायरेक्टली यहाँ पे आएगी, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के लिए. तो मैं को यहाँ पे सारा डेटा तो आ रहा है, बस यहाँ पे मुझको क्वेश्चन का चाहिए होगा. तो मैं क्या करूँगा, एक क्वेश्चंस करके लिस्ट बना लूँगा एंड इसके अंदर ये चीज़ डालूँगा. ठीक. और सेम वही चीज़ करने वाला हूँ क्वेश्चन में. क्वेश्चन के साथ में हमें क्या चाहिए होगा, व्हाट एग्जैक्टली वी नीड. यहाँ पे आंसर चाहिए होंगे ना, तो उन आंसर्स के लिए भी हम लिख सकते हैं. आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते हो. सो क्वेश्चंस को हम लोग कैसे लाएंगे, इस तरीके से क्वेश्चंस हम इसके अंदर पुश कर रहे हैं. सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू राइट अ लॉजिक फॉर क्वेश्चन इन इंस्टेंस डॉट क्वेश्चन डॉट ऑल, और उसके बाद में लेट्स प्रिंट द क्वेश्चन. लेट्स सी क्वेश्चन हमारे पास में प्रिंट हो भी रहे हैं कि नहीं. ठीक है. नाउ लेट्स सी लोड दिस. हेयर यू कैन सी हमारे क्वेश्चन प्रिंट हो रहे हैं. सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज हमारे पास में ये क्वेश्चन आ रहा है. सो क्वेश्चन के साथ साथ में हमें क्या क्या भेजना पड़ेगा. सो क्वेश्चंस डॉट अपेंड. ठीक है. इसके अंदर अपेंड कर दिया. तो क्वेश्चन के साथ साथ में हमें क्या क्या भेजना पड़ेगा भाई. क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन टाइप हो गया, रिक्वायर्ड है कि नहीं है, और इसके बाद में इसकी चॉइसेस. सो उन चीज़ों को हमें यहाँ पे भेजना पड़ेगा. तो ये ऐसे आ गया. इंस्टेंस डॉट दिस, इंस्टेंस डॉट क्वेश्चन टाइप, इंस्टेंस ऑफ रिक्वायर्ड, कॉमा और कॉमा. ठीक है. एंड चॉइसेस हमें तब फेच करनी है जब हमारे पास में
क्वेश्चन का टाइप चेकबॉक्स ये वो होगा. सो इफ क्वेश्चन डॉट क्वेश्चन टाइप इज इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन टाइप मल्टीपल चेकबॉक्स या ये. सो अगर क्वेश्चन का टाइप इनमें से कोई है तब तो हमें इसके चॉइसेस इसके अंदर डालनी है. सो चॉइसेस इज इक्वल टू नन, अदरवाइज चॉइसेस is equal to this, and for choice in question dot choices हम कैसे निकाल करके लाएंगे, इस तरीके से question dot choices dot all, और उसके बाद में choices dot append choice dot choice करके. ठीक है. सो चॉइसेस हमारे पास में आ गए, एंड यहाँ पे क्वेश्चंस होगा. उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो डेटा इज इक्वल टू दिस. फॉर्म्स के साथ साथ में आपको क्या क्या चाहिए, कोड चाहिए, टाइटल चाहिए और क्रिएटर चाहिए. नहीं, कोड, टाइटल, बैकग्राउंड कलर और क्वेश्चन, यही तीनों चाहिए हमें. चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करेंगे. सो इंस्टेंस डॉट कोड, और क्वेश्चंस के लिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को ऐसे भेज सकते हैं, एंड इंस्टेड ऑफ दिस लेट्स रिटर्न द एंटायर डेटा. सो इस तरीके से हम लोग कस्टम अपने टू रिप्रेजेंटेशन मेथड को मॉडिफाई कर सकते हैं. तो टू रिप्रेजेंटेशन एग्जैक्टली काम क्या करता है, जब भी आपके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको आप जेसन में कन्वर्ट करते हो. सो जेसन में कन्वर्ट करने का काम होता है ये टू रिप्रेजेंटेशन का. डिफ़ॉल्ट में ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मतलब जो भी आपने एक्सक्लूड में फील्ड मेंशन करी होंगी या डिफ़ॉल्ट में ऑटोमेटिकली काम करता है. बट आप चाहो तो इसको ओवरराइड भी कर सकते हो इस तरीके से, एंड ओवरराइड करना आपको डेफिनेटली चाहिए. बिकॉज होता क्या है कि कई बार आपको कस्टमाइज डेटा चाहिए होता है, तो जो कि serializer के थ्रू इज नॉट पॉसिबल. Okay, so with the help of two representation method you can definitely do this. Now if I go reload this, so हमारे पास में जो API का response है, जो भी हमें चाहिए था वो आ जाएगा. Question object has no attribute question choices. Question dot question choices is not available. Choices होगा, it's not. ठीक है. Now let's reload this again. Instance dot question. It's question not here. Now if I reload this, okay, क्या प्रॉब्लम आ गई. So for question instance of question dot all, अननेसेसरली की एरर थी. ओके, फर्जी की एरर थी, रीलोड पे सही हो गया. ठीक है. तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया. अब इससे आप क्वेश्चन को बिल्ड कर सकते हो. ठीक है. अब बट यहाँ पे चॉइसेस नहीं आ रही हैं, तो चॉइसेस को हम यहाँ पे अपेंड करना भूल गए हैं. सो यहाँ पे जाएंगे चॉइसेस और यहाँ पे चॉइसेस लिख देंगे, तो ये ऐड हो जाएंगे. सो नाउ इफ आई रीलोड दिस, तो कोई क्वेश्चन की जो जो चॉइसेस होंगी वो आ जाएंगी. जैसे चॉइसेस ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई. ओके, बट चॉइसेस is instead of directly doing this, what you can do is choices के साथ में आप ID भी डाल दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा. So here we can do what choice dot ID, and here we can do choice, ताकि फ्रंट एंड पे अगर हमें कुछ
आईडी वगैरह की ज़रूरत होगी तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे आप आईडी भी निकाल सकते हो, बिकॉज रिएक्ट में जब आप रेंडर करोगे ना तो आपको आईडी चाहिए होगी, या तो आप आईडी जनरेट करवाओगे तो आईडी इज़ गुड टू है, आप पास कर सकते हो। तो देखो आईडी आपकी ये आ गई, क्वेश्चन 1 है। चॉइसेस इसकी ये है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एनिमल, स्नेक, फूड करके, और ये है। अब मान लेते हैं कि कल को अगर मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे जा करके ऐड करता हूँ, सो लेट्स से आई गो इन द क्वेश्चन पार्ट एंड हाउ मच यू स्केल yourself in Python. Let's say question type is multiple choices and let's say 1, let's say I add 2, let's say I add 3, let's say I add 4 and let's say I add 5. ठीक है, and let's save it. So एक और अगर मैंने क्वेश्चन ऐड किया, now if I'm gonna reload this, so here you can directly see क्वेश्चन सेव हुआ हो बस। सो हाउ मच यू स्केल योर सेल्फ इन पाइथन, मल्टीपल चॉइसेस है, इसमें से आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। तो ये आप 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी चूज़ कर सकते हो। तो ये हमारी एक एंटायर द क्वेश्चन की एपीआई है। नाउ इफ़ आई गो इन पोस्टमैन ऑल्सो, अगर मैं इसको रन करूँगा सो यू कैन ईजिली लाइक गेट द एग्जैक्ट डेटा जो कि चाहिए होता है। ठीक है, इफ आई डू दिस हियर यू कैन सी फॉर्म फिल सक्सेसफुली, कोड ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। एंड इससे नाउ व्हाट वी कैन डू इज़ हम इसका बिल्ड कर सकते हैं, मतलब अपनी यूआई बिल्ड कर सकते हैं और जो भी हमें चाहिए होगा वो बिल्ड कर सकते हैं। तो हमारा पहला जो इनिशियल सेटअप है दैट इज़ कम्प्लीटेड। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू क्रिएट एपीआईज फ्रॉम वेयर वी कैन क्रिएट क्वेश्चन, ऑथेंटिकेशन, रेस्पॉन्सेज, हर चीज़ों को हमें स्टोर करना भी आना चाहिए। सो नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल फोकस ऑन दैट एरिया। एंड ऑल्सो आप में से बहुत सारे लोग पाइथन जांगो सीखना चाहते होंगे, एडवांस लेवल पे सीखना चाहते होंगे, मुझसे सीखना चाहते होंगे। फॉर देम कोर्स जाकर के चेकआउट कर सकते हो, प्राइसेस मे बी इन फ्यूचर बढ़ सकते हैं। सो आई विल रिकमेंड कि आप जाकर के कोर्स परचेज कर लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इसमें लिटरली बहुत एडवांस चीज़ें सिखा रहे हैं जो कि आपको अपने रिज्यूमे में मेंशन करनी पड़ती हैं। एंड आप अगर रिज्यूमे में ये सारी चीज़ें मेंशन कर लेते हो सो इट्स मच 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 ईजियर टू गेट अ जॉब, बिकॉज 2025 में पाइथन की बहुत ज़्यादा जॉब्स आने वाली हैं। सो आई डोंट वांट लाइक कि आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दो। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय एंड ली, थैंक यू।